Students, today we are going to start the union government, the judiciary. The third part of union government. The first two were legislature and executive, and the third is the judiciary. Judiciary means the body that gives justice, that provide justice. Okay, so we need judiciary so that everyone can take the justice. Okay, हर पर्सन को अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले, जस्टिस मिले. फॉर दिस our constitution gave us the structure of judiciary. Okay, in a federal government it is essential to have judiciary which not only resolves dispute but is the final interpreter of the constitution. In our country, the judiciary is not only for giving justice, it also interpret the constitution. What it means, interpret means कि constitution की जो terms हैं, जो constitution में लिखा हुआ है, उसे explain कौन करता है? It is the work of judiciary or the right of judiciary. ठीक है, सिर्फ कोर्ट के पास and only in the hand of Supreme Court, it is the right to explain the terms of constitution. Okay, when there is a dispute regarding property or violation of rights or abuse of power, violence, exploitation, any other issue related to our day-to-day life, the matter can be taken to court to seek justice. अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इफ वी फेस एनी प्रॉब्लम, वी कैन गो टू कोर्ट टू टेक जस्टिस. जस्टिस सीख करने के लिए, जस्टिस पाने के लिए हम किसी भी रॉन्ग थिंग के अगेंस्ट अपील कर सकते हैं कोर्ट में, whether it is regarding property or inhuman activities or misuse of power, whatever the things are. Exploitation, someone exploited us in our house or in our workplace. ठीक है, किसी भी जगह पर कोई किसी भी तरह की अगर हमें प्रॉब्लम आती है, we can go to court, we can appeal in court to seek justice. Clear? The court gives us justice and it helps us to live with harmony, a normal, a happy life. जब हमें ये पता है कि कोई अगर हमारे साथ रॉन्ग कर रहा है तो हम उसके अगेंस्ट अपील कर सकते हैं एंड दैट पर्सन गेट द पनिशमेंट. ओके, तो हम एक पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. ओके, सो व्हाई वी नीड जुडिशरी? To resolve the disputes in our common life, we need judiciary to resolve the disputes. अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी जो किसी और पर्सन के साथ डिस्प्यूट हुए हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें जुडिशरी की ज़रूरत है. जस्टिस के लिए हमें जुडिशरी की ज़रूरत है. एंड इन अ फेडरल गवर्नमेंट वी नीड जुडिशरी एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इस चीज़ को बताने के लिए भी हमें जुडिशरी की नीड है. इन आवर कंट्री द जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट. हमारी कंट्री में जुडिशरी इंडिपेंडेंट है. एंड वाई देयर इज़ अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि जुडिशरी किसी के कंट्रोल में ना हो, ऐसी ज़रूरत क्यों है? जस्ट इमेजिन
you just go to the court for seeking justice and you are appealing against some powerful person, some leader or anyone else it can be, तो क्या होगा अगर जुडिशरी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगी या पावरफुल पर्सन्स के कंट्रोल में होगी तो हमें कभी जस्टिस नहीं मिलेगा, बिकॉज जुडिशरी इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू द पावरफुल पर्सन्स, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ओके, तो उसके लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जुडिशरी पर किसी का कंट्रोल ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, अपने डिसीज़न इंडिविजुअली खुद से ले सकती हो। ओके, द जुडिशरी not only protects the right of the citizen but also resolves various disputes arising out of civil cases, criminal cases and constitutional matters without any pressure from the executive or legislature। हमारी कंट्री में जो हमारी जुडिशरी है वो फ्री है। Our judiciary or our courts are free to take decisions regarding any dispute or any constitutional matter in any criminal case. They are free to take decisions. Okay, they are not under control of executive or legislature. They are not working under the pressure of these two parts of government. Okay, our judiciary is free from the every pressure or every influence। ठीक है। Our constitution has various provisions which make judiciary independent and keep it free from the influence of the legislature and executive। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न गिवन है कि आर जुडिशरी इज़ इंडिपेंडेंट, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ओके, एंड व्हाट आर दी स्पेशल प्रोविजंस? कौन से स्पेशल प्रोविजंस हैं? जो जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। They are not appointed on the recommendation of some leader or some powerful person। recommendation मतलब सिफारिश, किसी की recommendation से वो जज नहीं बनते हैं। they are appointed on the basis of their qualification, their quality। वो qualified हैं, वो जज बन सकते हैं, इसलिए उन्हें अपॉइंट किया गया है। ओके, सेकंड, the judges cannot be removed easily। For the removal of judges there is the same process as the president, that is impeachment। impeachment को ही यूज़ किया गया है जजेस को रिमूव करने के लिए। judges are paid adequate salary। जजेस को एक प्रॉपर, एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी गिवन है। Their salary and allowances cannot be reduced during their tenure। उनको ये थ्रेट नहीं दिया जा सकता, डर नहीं दिखा सकते कि इफ़ यू आर नॉट गिविंग डिसीजन अकॉर्डिंग टू अस वी विल रिड्यूस योर सैलरी। नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट है या जो ऑनर है या जो बॉस है वो थ्रेट दिखाता है, वो डर दिखाता है कि अगर आप हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो हम आपकी सैलरी डिडक्ट कर सकते हैं। बट जजेस के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, उनकी सैलरी फिक्स होती है और उनके टाइम पीरियड में उनकी सैलरी को डिडक्ट नहीं किया जा सकता। द टेनर ऑफ द जजेस इज़ फिक्स्ड। उनका जो टाइम है वर्क करने का वो फिक्स्ड है। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ रिटन कि what is the tenure of the judges, जजेस का क्या टाइम पीरियड है। ओके, here is the another topic, type of cases। कि which type of cases
for the justice, taken for the justice. There are two type of cases, civil cases and criminal cases. Civil cases means जो जनरल केस हैं, जनरल तो ये भी नहीं होते, बट नॉर्मल डिस्प्यूट्स जो हैं प्रॉपर्टी से, मैरिज से, मनी रिलेटेड, रेंट मैटर्स, परचेज ऑफ गुड, ठीक है, जिसमें हल्की फुल्की कोई बहस या कोई लड़ाई है या कोई भी प्रॉब्लम है. क्लियर? तो दीज आर सिविल केसेस, केसेस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, परचेज ऑफ गुड्स, रेंट एटसेट्रा. These are the civil cases. They also include infringement of violation of rights of an individual. There are civil laws to settle the cases. Okay. इन केसेस में, सिविल केसेस में हम राइट्स का वायलेशन, कि हमारे राइट्स को कोई ख़त्म कर रहा है, कोई उससे हमसे छीन रहा है, उस चीज़ को भी हम इंक्लूड करते हैं. एंड देयर इज़ सिविल लॉज टू सेटल दीज डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम्स. इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिविल लॉज गिवन है. द क्रिमिनल केसेस, दीज केसेस इंक्लूड मर्डर, चीटिंग, रॉबरी, किडनैपिंग, ओके, एंड harassing of women. So these are the criminal cases. Violence, beating some person, तो ये सब चीज़ें क्रिमिनल केस में आती हैं. For this firstly we have to lodge an FIR. हमें एक FIR लॉन्च करवानी होगी अगर क्रिमिनल केस स्टार्ट होता है तो. ओके. एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस the case is filed in the court. FIR means first information report. जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च करवा दी जाती है, लिखवा दी जाती है, तो उसके बाद पुलिस अपना वर्क करती है. एंड इफ़ इट फाउंड अ केस कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद केस को फाइल किया जाता है कोर्ट में, कोर्ट के सामने केस को लेकर आते हैं. In case the crime is proved, the accused can be sent to jail or fined, or in some cases both jail and fine. अगर accused जो person है उसे criminal वो prove हो जाता है, उसका crime prove हो जाता है, then he sent to jail. उसे जेल भेज देते हैं या फिर फाइन किया जाता है, या कुछ केसेस में दोनों चीज़ें होती हैं, जेल भी और फाइन भी. ओके. टैक्स इवेजन इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस. टैक्स इवेजन मीन्स टैक्स की चोरी करना, कि हम बहुत सारा सामान सेल करते हैं बट टैक्स नहीं पे करते, हम अपनी सैलरी कम शो करते हैं, टैक्स पे नहीं करते, तो टैक्स पे ना करना इज़ टैक्स इवेजन. सो टैक्स इवेजन इज़ ऑल्सो अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो चोरी तो क्राइम ही है. ओके. तो टैक्स इवेजन, कीप इट इन माइंड, इट इज़ द क्रिमिनल ऑफेंस. ओके.